Welcome children. In our last class, we discussed the chromosomal theory of inheritance, in which we also discussed, at the end we discussed that for this chromosomal theory of inheritance, contribution of T.H. Morgan was also there. So today we will discuss work of T.H. Morgan and another phenomena which was discovered by T.H. Morgan, that is linkage and recombination. So let us start our discussion, children. So let us first discuss the work of T.H. Morgan. So what was his work? Morgan, T.H. Morgan, he made his study on the Drosophila. Drosophila, you know children, these are the fruit flies. Okay, कभी कोई फ्रूट अगर कटा हुआ रखा है तो उसके सामने आपने देखा होगा छोटे छोटे मक्खी घूमते रहते हैं, तो उसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है. एंड these fruit flies, the scientific name of these fruit flies are Drosophila. Okay, so he studied the cross in Drosophila. Drosophila ने उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया. He did डाइहाइब्रिड cross. Okay, dihybrid cross. And what type of character he studied? He studied the sex linked genes. Sex linked genes, that is inheritance of sex linked genes are studied by T.H. Morgan. And what are sex linked genes, children? Sex linked genes means, you know that the sex chromosomes are of two types, that is X and Y. So in case of female, two X chromosomes are there, and in case of male, one X and one Y chromosome are there. Okay, so this is female. So this X chromosome, whatever genes are located on the X chromosome are known as the sex linked gene or X linked gene. So is it clear what are sex linked genes? The genes located on the X chromosome are the sex linked genes. Okay. Now this cross whatever T.H. Morgan did were similar to the dihybrid cross done by Mendel in peas. Okay, so here what are characters taken by Morgan that we'll discuss while doing the cross. But let me first tell you why he selected Drosophila for his study. Such a small fly, and its body structure is not even clearly distinct in naked eye. Still then, why he selected this fruit fly for his study? So let us know about this. The regions are, so let me first write down why he selected. Why Drosophila? Why Drosophila? Okay, so this is the important question that comes in your exam, children. She selected the Drosophila because first point, it is suitable for genetic studies. First point. Second point is that it can be grown on, it can be grown on
simple synthetic or culture medium in the ओके इसको हम कहीं भी थोड़ा सा फ्रूट ले लेंगे किसी कंटेनर में, उसको मैश कर देंगे, उसको अगर खुला छोड़ देंगे तो उसमें फ्रूट फ्लाई अपना कल्चर करना शुरू कर देते हैं, ग्रो होना शुरू कर देते हैं. ओके एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दे कंप्लीट their life cycle in about 2 weeks. So they have short lifespan. Okay. The next criteria was a single mating produces large number of progenies. मतलब एक बार अगर उसको मेटिंग किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, तो एक साथ बहुत सारे प्रोजेनी फ्लाइज मिलते हैं. ठीक है. फिफ्थ कैरेक्टर था क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल. सो बाहर से अगर हम देखेंगे मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, तो पता चल जाएगा. जो कॉपुलेटरी ब्रिसल्स होता है वो मेल होता है, जो कि फीमेल में नहीं होता है. सो बाय लुकिंग एट दोज फीचर्स we can know which one is male and which one is female. Okay. The last point is that sixth point, many kind of variation can be under low power microscope. Low power microscope. Okay. So these are the 6 reasons why Morgan selected Drosophila for his study. So have you noted down, children? Okay. Now next, what was his observation? What was his observation? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया. कौन सा कैरेक्टर लिया? कैरेक्टर लिया एक्स लिंक्ड कैरेक्टर लिया. दैट मीन्स एक्स क्रोमोसोम में जो जो जीन्स होते हैं उनमें से किसी भी 2 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन लेकर उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस किया. और डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसा था? इट वाज सिमिलर टू दैट मेड बाय मेंडल. मेंडल जिस तरह का डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे उसी तरह का डाइहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया था. ठीक है. नाउ व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन? उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशंस. ओके. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेंडल ने कहा था कि जो 2 जीन होते हैं एलेलिक पेयर में होते हैं, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एलेलिक पेयर. F2 रेशियो जिसके वजह से कितना आता था? 9:3:3:1 आता था. But it is not always this ratio.
So these ratios are expected when the two are independent of each other. Okay? अगर ये दो जीन, हम मान लीजिए दो जीन ले रहे हैं ए एंड बी, ये अगर इंडिपेंडेंट है, अभी इंडिपेंडेंट क्या है हम देखेंगे, आगे जाकर देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्या है. सो अगर ये इंडिपेंडेंट है तब भी ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे और we will get the ratio 9:3:3:1 as a dihybrid F2 phenotypic ratio. लेकिन टीएच मॉर्गन ने जब एक्स लिंक्ड जीन का स्टडी किया इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, तो उन्होंने देखा कि दिस रेशियो इज नॉट कमिंग, ये जो रेशियो है ये रेशियो नहीं आ रहा है. ओके, सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड न्यू कॉम्बिनेशंस आर कमिंग इन डिफरेंट प्रोपोर्शन इन डिफरेंट केसेस. ओके, सो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि द मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज ट्रू ओनली व्हेन the two genes are independent, but when the two genes are linked, then it is not true. Okay, so on the basis of his observation, he has drawn the conclusion and he concluded that when the two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, the proportion of parental combination are much higher than the non-parental combination. इसका मतलब क्या है? What is his conclusion? Conclusion क्या था? His conclusion was, अगर एक क्रोमोसोम में दो जीन ऐसे लोकेट है, whatever may be their position, चाहे ये ए हो ये बी हो, तो ये जब ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे, दिस इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन. ओके, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये है, मान लीजिए इसका दूसरा एलील है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? दिस इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज, मान लीजिए एक पेरेंट में कैपिटल बी है और दूसरे में स्मॉल ए, दोनों ही स्मॉल ए स्मॉल बी है. तो उन्होंने कहा कि चाहे वो किसी भी तरह का डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, तो उसमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो हमेशा ज्यादा प्रोपोर्शन में आता है. और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए कैपिटल बी. सो दिस इज नॉन पेरेंटल, क्योंकि एक पेरेंट से ये आया, एक पेरेंट से ये आया. ठीक है, सो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो प्रोपोर्शन होता है हमेशा कम होता है. ठीक है, सो इट वाज हिज कंक्लूजन. सो नाउ राइट डाउन चिल्ड्रन, व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन. लेट मी राइट डाउन. Let me first write down the observation. Okay, the two genes did not segregate independently of each other, did not segregate independently of each other, and the F2 ratio मतलब मेंडेलियन F2 ratio is deviated very significantly from
9:3:3:1. 9:3 significantly from 9:3:3:1. So this 9:3:3:1 is expected only when the two genes are independent. ओके, अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं तभी इसका रेशियो ये आ सकता है. तो ये मेंडल ने कहा था, बट ऑब्जर्वेशन ऑफ टीएच मॉर्गन वाज समहाउ डिफरेंट. ठीक है, तो हैव यू रिटन चिल्ड्रन? ओके, लेट मी नाउ राइट डाउन व्हाट वाज हिज कंक्लूजन. उनका कंक्लूजन क्या था? So his conclusion was, just a minute. When two genes in a conclusion, when two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations, the proportion of parental gene combinations are much higher than the non-parental combination. नीचे ये एग्जाम्पल बच्चों आप लिख दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा. सपोज से ये क्रोमोसोम ए बी दीज आर द जीन्स. ठीक है, ये एक पेरेंट है एंड दिस इज अनदर पेरेंट. ओके, सो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. तो व्हेन दे आर क्रॉस, अगर इसको क्रॉस किया जाता है, आफ्टर क्रॉसिंग व्हाट वी आर गेटिंग, एंड हियर आई एम राइटिंग द रिजल्ट. कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा दिस इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन. Okay, so what is the other parental combination? Small a small b small a small b. तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा ज्यादा होता है. और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? सो दीज टू आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन. नॉन पेरेंटल इज कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. Okay, or you can say small b capital A capital B. So this is any kind of combination other than this one is called non-parental combination. So this non-parental combination is always less than the parental combination. Okay, clear children? Now let us discuss linkage and recombination. So T.H. Morgan, on the basis of his observation, he gave this conclusion, and he also introduced one new phenomenon that is called linkage.
So let me first tell you what is linkage. Linkage is the link. लिंक मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिंकेज. So what is linkage children? एक दूसरे के साथ लिंक में रहना, जुड़े रहना. ओके, so it is described as physical association of genes, physical association of genes on a chromosome and the appearance of parental genes, parental gene combinations are due to linkage. Okay, so what is linkage? Linkage means physical association of genes. क्रोमोसोम में फिजिकली एक दूसरे के साथ जीन कितना एसोसिएटेड है. अभी देखो ये ए बी सी, ए के साथ बी का एसोसिएशन ज्यादा है, बट ए के साथ सी का एसोसिएशन थोड़ा कम है. सो ए एंड बी आर मोर लिंक्ड देन ए एंड सी. ओके, सो इसमें हम और क्या, what other sentence we can say? The genes present on the chromosomes are very tightly linked and they show very low recombination. Okay, इसका मतलब क्या है? The genes which are located very tightly means what? Very closely located, very close to each other, very tightly linked. So when they are very tightly linked, they show very low recombination. उनमें recombination होना बहुत कम है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ ए है, यहाँ जो क्रोमोसोम है बी है, जीन है बी है. ठीक है, तो यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ स्मॉल बी है. तो इसमें आप देखो बच्चों डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम एक केस लेंगे जिसमें हम एम एन ले रहे हैं. जीन एम एन, दिस इज एम, दिस इज एन. ये दोनों में डिस्टेंस कितना है? बहुत कम है. दैट मीन्स दे आर टाइटली लिंक्ड विथ ईच अदर. सो इस केस में एम के साथ बी का जोड़ना या फिर एम के साथ कैपिटल एम, मान लो कोई दूसरा है, ठीक है, कैपिटल एम एन है, तो ये दोनों का एक न्यू कॉम्बिनेशन बनना बहुत ही मुश्किल है. इसीलिए जो नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे कम होता है. ठीक है, अभी हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन क्या है. ये हो गया लिंकेज. लिंकेज का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी हाउ टाइटली द जीन्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ कितना टाइटली लिंक है. अगर ज्यादा टाइटली लिंक्ड है तो न्यू कॉम्बिनेशन कम होगा. ठीक है, और अगर थोड़ा लूजली यानी डिस्टेंटली प्लेस्ड है तो न्यू कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा होगा. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रेन,
द whatever may be the case, डाइहाइब्रिड क्रॉस का कोई भी केस हो, उसमें हमेशा अगर आप रेशियो लेते हो पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, then parental combination is always much higher than the non-parental combination. ठीक है, ये हम आगे जाकर क्रॉस करेंगे, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन क्या है। पहले तो हम पढ़ लिए लिंकेज, अभी हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। Recombination means formation of non-parental combination of gene. Non-parental combinations of gene. When is it possible? ये कब possible है? It is possible when genes are distantly placed on a chromosome. ठीक है, तो मान लो ये क्रोमोसोम A and this is B, यहाँ स्मॉल a and स्मॉल b है, तो ये दोनों में न्यू कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? ये दोनों का न्यू कॉम्बिनेशन मतलब a के साथ स्मॉल b एंड स्मॉल a के साथ कैपिटल B. सो दीज आर द न्यू कॉम्बिनेशन. सो ये न्यू कॉम्बिनेशन होता क्यों है? बिकॉज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैचिटिन ऑफ प्रोफेज 1. सो वहां पर क्या होता है? आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, यहां से ये एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट टेक्स प्लेस, जिसके वजह से ए के साथ ये सेगमेंट के साथ यहां से इतना सेगमेंट चला जाता है. सो दे विल जॉइन लाइक दिस नाउ. ठीक है, सपोज से दिस इज बी, ये बी यहां चला गया, सो यहाँ ए बी आ गया और इसके साथ ये एक्सचेंज हो गया. तो जिसके वजह से आपका क्या हुआ? ए के साथ दिस इज कैपिटल बी आ गया. Now this is the new combination. So why it is possible? ऐसा क्यों हुआ? क्रॉसिंग ओवर क्यों हो पाया? क्योंकि ये जो दो जीन थे they were distantly placed. ये दोनों में काफी डिस्टेंस था. That means they were loosely held. Okay? So this is called recombination. That is formation of the new combination or non-parental combination. Okay children? So इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला? हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन स्टडी से हमको क्या कंक्लूजन मिला बच्चों? ये कंक्लूजन मिला कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन depends on the distance between the genes. Distance between the genes. Am I clear children? Okay. Now अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो टी.एच. मॉर्गन ने ऐसा कंक्लूजन दिया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऐसे ही तो नहीं कर दिया, उन्होंने कुछ क्रॉस किया. तो यहाँ पर हम मॉर्गन का 2 क्रॉस पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बच्चों. तो अभी आप ध्यान से देखिए ये क्रॉस. ऑफन चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट, बट इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. तो अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो पहले हम फर्स्ट क्रॉस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं. जैसे हमने आपको बताया कि एक्स क्रोमोसोम होता है, सो दिस इज एक्स क्रोमोसोम, एंड वाई क्रोमोसोम जो होता है वो छोटा होता है ड्रोसोफिला में,
तो एक्स क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं उनको कहा जाता है एक्स लिंक्ड जीन्स, और वाई क्रोमोसोम जो है वो इनर्ट होता है। अभी हम जो कैरेक्टर पढ़ेंगे, मॉर्गन जो कैरेक्टर पढ़े थे वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर था, वाई क्रोमोसोम में नहीं था उसका एलील, इसीलिए उनके लिए ये स्टडी करना बहुत आसान हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम पहला क्रॉस करते हैं। The first cross was done between, किस किस में किया गया था, क्रॉस ए। ठीक है, अब पहले इसको बच्चों लिख डालो। क्रॉस ए में किसको किसको किए थे, येलो बॉडीड व्हाइट आईड म्यूटेंट, येलो bodied, is this letter visible to you children? So yellow bodied white eyed mutant female with brown bodied red eyed male, red eyed male। ठीक है बच्चों, अभी हम देखेंगे ये क्रॉस कैसे किया था उन्होंने। तो अभी देखो बच्चों, इसमें हम पहले लेंगे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में हम लेंगे, ऐसे करते हैं, तो मुझे उसको हॉरिजॉन्टली लेंगे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो पहले हम लेंगे, ये हो गया, सॉरी लाइन टेढ़ा जा रहा है। सो दिस इज एक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल क्या है, फीमेल में क्या लिया गया है बच्चों, फीमेल में लिया गया है कि येलो बॉडी व्हाइट आई। ठीक है, येलो बॉडी व्हाइट आई, तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो हम यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, देखो बच्चों, येलो बॉडी, सो वाई प्लस एंड व्हाइट आई, व्हाइट आई, व्हाइट आई क्या है, W प्लस। तो ये दोनों में बच्चों हमेशा ध्यान रखो, ये दोनों में डिस्टेंस बहुत कम था, Y प्लस एंड W प्लस। ठीक है, और उन्होंने जो मेल लिया था, मेल कैसा था, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा जो था वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ये छोटा सा था वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ये थोड़ा कर्व था। ठीक है, तो ये था वाई डब्ल्यू। ठीक है, ये है, आई एम सॉरी, दिस इज फीमेल, ये है मेल। ठीक है बच्चों, तो अभी ये दोनों को हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में गैमेट फॉर्मेशन वो सब स्टेप नहीं दिया, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है। सो लेट मी डू द क्रॉस स्टेप बाय स्टेप, जैसे मेंडल ने किया था वैसे ही मैं करूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो गैमेट होगा, कितने तरह के गैमेट होंगे बच्चों, यहाँ पर ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, इसमें से एक तरह का गैमेट आएगा, दैट इज Y प्लस W प्लस। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एलील तो सेम है ना, Y प्लस W प्लस है। यहां पर हमको कितने तरह के गैमेट्स मिलेंगे बच्चों, 2 तरह के गैमेट मिलेंगे। एक में होगा Y क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें होगा Y एंड W, और दूसरा होगा स्पॉर। ठीक है, दूसरा होगा दैट इज स्पॉर विथ वाई क्रोमोसोम। ये क्या है,
ये दोनों है स्पर्म, ठीक है। ये क्या है, एग। अभी बच्चों इसका हम क्या करेंगे, F1 प्रोजेनी निकालेंगे। इसका F1 प्रोजेनी कैसे निकालेंगे, पनेट स्क्वायर करेंगे, F1 प्रोजेनी, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी के लिए हमको फीमेल से कितना गैमेट मिला बच्चों, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। कितना मिला हम नहीं देख रहे हैं, कितने टाइप्स का मिला, ठीक है। सो यहां हम लेंगे मेल, यहाँ फीमेल। तो मेल में हमको दोनों तरह के गैमेट मिले, एक है विथ Y क्रोमोसोम एंड दूसरा विथ Y एंड W। YW क्या है, दैट इज ब्राउन बॉडीड रेड आई। दिस इज ब्राउन बॉडी रेड आई कैरेक्टर। यह फीमेल में एक ही गैमेट है, one type of gamete, not one gamete. So it is Y plus W plus. तो अभी देखो बच्चों इसमें आपको क्या मिलेंगे कैरेक्टर, देखो ये कॉम्बिनेशन देख लो बच्चों, क्या आ गया, क्या Y plus W plus और ये हो गया YW, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या मिल गया आपको, you got Y plus W plus and the Y chromosome। तो इसका मतलब 50% फीमेल 50% मेल हुए। 50% मेल जो हुए वो क्या हो गए, येलो बॉडीड व्हाइट आइड मेल हुए। सो दिस इज येलो बॉडीड व्हाइट आइड मेल है, ठीक है। और ये फीमेल जो हुआ, फीमेल क्या हो गया बच्चों, फीमेल में न्यू कॉम्बिनेशन आ गया, फीमेल में न्यू कॉम्बिनेशन आ गया। ये क्या हो गया आपका, एक्सटर्नली ये क्या होगा, येलो बॉडी व्हाइट आइड होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, दोनों ही येलो बॉडी व्हाइट आइड हुए। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो गया, जीनोटाइप अगर देखोगे तो यहाँ पर बोथ द एलील्स आर देयर, ठीक है। अभी हम चलते हैं F2 जनरेशन देखेंगे। अभी ये दोनों इंडिविजुअल को हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, ये इसको और इसको हम अभी क्रॉस करेंगे। तो चलिए हम अपना F2 जनरेशन करते हैं। ओके, सो इन F2 प्रोजेनी, देखो बच्चों यहाँ F2 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी में क्या होगा बच्चों, पहले हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। मैं ये मिटा देती हूँ, विल गेट एनफ स्पेस, जगह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों हमको किसको लेना है, ये इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल, ठीक है, ये दोनों को हमको क्रॉस करना है। सो आई एम टेकिंग दिस इज Y plus W plus and YW, ठीक है ना। इसके साथ हमने क्रॉस किसको किया, that is Y plus W plus X क्रोमोसोम में है और दूसरा Y क्रोमोसोम, जिसमें कि इसका कोई होमोलोगस जीन नहीं है। अभी बच्चों ये क्या गैमेट देता है, व्हाट टाइप ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस, ये प्रोड्यूस करेगा 4 टाइप्स ऑफ गैमेट, it will produce 4 types of gamete. What are those gametes? So these are possibilities. I am not telling that only these 4 types of gamete will be definitely produced, but these are the possibilities. So ये डायरेक्ट यहाँ आ गया एक, दूसरा ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, दूसरा क्या है YW। बाकी और एक पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, ये जो स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है ये दोनों में,
ये थोड़ा सा स्पेस में क्रॉसिंग ओवर होने का चांस है। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होने का चांस है। अगर ये एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है तो क्या होगा, y प्लस के साथ w आएगा, सो y प्लस w, और दूसरा क्या मिलेगा हमको, y w plus. So here we are getting 4 types of gametes. But here what we are getting, यहाँ हमको मिलेगा 2 तरह के gametes, and these 2 types of gametes are y plus w plus, and this one is y chromosome. Now let us represent it in Punnett square. हम इसको अभी Punnett square में represent करेंगे। तो बच्चों देखो, is this visible up to this? So यहाँ हम जैसे मेल फीमेल लेते हैं वैसे ही लेंगे, ठीक है। So यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है। मेल के कितने तरह के गैमेट्स है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 2 तरह के गैमेट है, y प्लस w प्लस, ठीक है। और एक है y क्रोमोसोम जिसमें कोई होमोलोगस जीन नहीं है। लेकिन फीमेल में हमको कितने तरह के गैमेट मिल रहे हैं बच्चों, फीमेल में वी आर गेटिंग 4 टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है। तो व्हाट आर दीज गैमेट्स, इसको यहां हम लिखेंगे y प्लस w प्लस, नेक्स्ट गैमेट इज y प्लस w, नेक्स्ट इज y w plus, next last one is y w, okay। अभी इसको हम क्रॉस करेंगे, then what will we get, so these all will be female, ये सारे फीमेल होंगे और ये सारे मेल होंगे, क्योंकि यहाँ पर y क्रोमोसोम है और यहाँ सारे x क्रोमोसोम आएंगे, दो x क्रोमोसोम आएंगे। so this combination will be y plus w plus, other one will also be y plus w plus। ये क्या आएगा बच्चों, y plus w, other one will be y plus w, y plus w plus, ये ठीक है। फिर इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा y w प्लस और इसके साथ ये आएगा, ठीक है, y प्लस w प्लस। फिर ये लास्ट वाले में क्या आएगा, y w, उसके साथ y प्लस w प्लस, ठीक है। उसी तरह हम मेल का भी निकाल सकते हैं, तो मेल का क्या होगा, सेम गैमेट रहेगा y प्लस w प्लस, ठीक है। इसमें रहेगा y प्लस w, इसमें रहेगा y w प्लस, एंड लास्ट वन में रहेगा y w, ठीक है। और हर एक के साथ ये y क्रोमोसोम, दिस y क्रोमोसोम विल बी देयर, ठीक है। इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो ऐसे we'll get the 4 types of male offspring। 4 तरह के मेल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे और 4 तरह के फीमेल ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों, can you say which are the parental combination and which are the new combinations? Yes, obviously these two are, so here you can see, हम मेल को देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। So here you can see that children, this is the parental combination, this is parental combination, ठीक है। और यहाँ पर भी
आपका एक्सटर्नली ये क्या है, y प्लस डब्ल्यू प्लस ए एक्सप्रेस होगा. सो दिस इज ऑल्सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन. ठीक है बच्चों, अगर हम मेल में देखेंगे तो मोर क्लियर हो जाएगा. ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन y प्लस डब्ल्यू प्लस, ये एक पेरेंट का और दूसरे पेरेंट का y डब्ल्यू. सो ये हो गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन. बाकी जो ये दो है, दीज आर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये दो भी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके साथ y प्लस डब्ल्यू है. ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप देखे होंगे कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है, जब इसको पूरी तरह स्टडी किया गया, ये देखा गया कि इस केस में, ये जो केस हमने बताया आपको, इसमें क्योंकि जीन्स काफी क्लोज थे, तो इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना परसेंट आया? पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आया? इट वाज 98.7%. ठीक है, और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल टाइप कितना आया? और या फिर हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप, नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कितना आया? रेस्ट, दैट इज 1.3%. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. तो उन्होंने और एक क्रॉस किया, ये क्रॉस किया जब जीन आसपास थे. ठीक है, तो दूसरा क्रॉस, हम उनका दूसरा क्रॉस देखेंगे. बच्चों ये कैरेक्टर आप लेकर क्रॉस खुद से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस डिस्कशन, ये डिस्कशन के बाद बच्चों आप अपने रफ कॉपी में सारे बच्चे जो कैरेक्टर हमने लिया उसको आप कॉपी में खुद से करो. ठीक है, डोंट वांट टू दैट इज लर्न इट बाय हार्ट. ठीक है, आप इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करो, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे बच्चों. तब अभी हम दूसरा क्रॉस लेंगे, वो है सेकेंड क्रॉस. सेकेंड क्रॉस में उन्होंने ऐसा कैरेक्टर लिया जो कि थोड़ा डिस्टेंटली प्लेस्ड थे. क्या था वो? व्हाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्ड, व्हाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्ड. व्हाइट आइड मिनिएचर विंग्ड में आई उनका व्हाइट था और विंग जो है वो मिनिएचर, मतलब छोटा छोटा विंग्स था, और ये म्यूटेंट थे, और इस तरह का उन्होंने फीमेल लिया. ठीक है, जस्ट ए मिनट चिल्ड्रन. इस तरह का उन्होंने फीमेल लिया, और मेल क्या लिया बच्चों? मेल लिया रेड आइड एंड नॉर्मल विंग. ठीक है, सो रेड आई नॉर्मल विंग इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव. तो उन्होंने जो कैरेक्टर लिया ये भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर था, और उन्होंने क्या लिया? व्हाइट आई W एंड मिनिएचर M. ठीक है, तो फीमेल को लिया इस तरह W एंड M. ठीक है, और मेल क्या था? W प्लस M प्लस. ठीक है, मेल को लिया उन्होंने रेड आइड एंड नॉर्मल विंग, और उन्होंने, ये Y क्रोमोसोम है बच्चों, दिस इज मेल, this is female. Now it is your work children कि इसका F1 प्रोजेनी क्या होगा आपको निकालना है. F1 क्या होगा, उसके बाद F2
क्या होगा, सेम क्रॉस हमने जैसे किया वैसे ही आपको करना है। I will tell you only the conclusion of this one. क्योंकि ये जो दो जीन डिस्टेंटली प्लेस थे, काफी दूरी पर थे, इसीलिए the chance of crossing over was more, ठीक है। इसीलिए जो न्यू कॉम्बिनेशन है, यानी W के साथ M प्लस आना और M के साथ W प्लस आना, इसका चांस थोड़ा पहले से ज्यादा था। तो इन दिस केस द पेरेंटल टाइप was 62.8% and recombinant type या फिर नॉन पेरेंटल टाइप, recombinant वो था 7.2%। ओके चिल्ड्रन, तो आप देखो पहले केस में क्या था, पहले केस में क्योंकि जीन नजदीक थे, एक दूसरे के साथ काफी लिंक्ड थे, इसीलिए उस केस में पेरेंटल कितना था 98.7 एंड नॉन पेरेंटल कितना था 1.3%। लेकिन यहाँ पेरेंटल हमेशा ज्यादा ही रहेगा, बट नॉन पेरेंटल आपका वैरी करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, लोग सेम क्रोमोसोम में डिस्टेंस अगर ज्यादा है दोनों जीन के बीच तो रिकॉम्बिनेशन होने का चांस ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप आपको ज्यादा मिलेंगे। बट अगर जीन नजदीक है तो उस केस में आपको बहुत कम रिकॉम्बिनेंट मिलने का चांस है, या फिर नहीं भी मिल सकते हैं। जब पूरी तरह अटैच्ड हो जाते हैं, जीन के बीच कोई गैप नहीं होता, उसको कहा जाता है कंप्लीट लिंकेज। लिंकेज फिर दो तरह का होता है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। सो कंप्लीट लिंकेज मतलब उसमें जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो बिल्कुल आएगा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा, उसको कहा जाएगा कंप्लीट लिंकेज। उसमें 100% पेरेंटल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। और इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब ये जो जितना मैं बोल रही हूँ, चाहे वो 1.3 चाहे वो 37.2, कुछ तो आ रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, तो उसको हम बोलेंगे कि इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, और ये जो स्टडी बच्चों जीन मैपिंग में हेल्प किया, और स्ट्रैटिवैंट जीन मैपिंग, ये स्टडी को लेकर जीन मैपिंग करना शुरू किए, म्यूटेशन स्टडी किए, और ये आगे जाकर बहुत हेल्पफुल हुआ फॉर जीन मैपिंग, एंड जीन मैपिंग हेल्प्ड द साइंटिस्ट टू प्रिपेयर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपका नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी क्रॉस हो, कोई भी चाहे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, आप खुद से करो ताकि आपको समझ में आएगा, और आप एग्जाम में चाहे कोई भी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन दिया जाए आप उसको आसानी से कर सकते हो। फॉर टुमारो, फॉर टुडे दिस मच ओनली चिल्ड्रन। कल हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, ठीक। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।